फिटनेस स्टार्ट होता है जहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो आई थिंक वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स मेडल्स भी ज्यादा है, तो लोग भी फिटनेस के लिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इनफैक्ट व्हेन आई almost played for like 20 years now at the highest level, and when I go to gym, ऑफिस से ज्यादा आई थिंक जिम में लोग रहते हैं, they work out so much. And actually sir was saying कि साइकिल पे जाया करो, मैं बोलती हूँ भाग के जाया करो ऑफिस, यहीं पे चेंज कर लिया करो. That's because I learned from my father. You know, at the age of 60, 65 also he used to walk say 4-5 kilometers, and he used to be like, ये कार कब यूज कर रही है, चल कब walk with me. I think fitness is very important. दिल से होना चाहिए. जहाँ पे आप अगर examples देखिए, like China, you know, obviously मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन China is one of the fittest country. सब लोग वहाँ पे इतने फिट हैं, जापान के लोग इतने फिट हैं, और वहाँ पे मेडल्स भी इतने सारे आते हैं. It's just because I think जो sports culture है वो ज़्यादा है, वो इंडिया में grow हो रहा है. From last few years I can see that we have got so many Olympic medals. लड़कियाँ ज़्यादा हैं. I hope लड़के थोड़ा you know और workout करें इसके लिए. But cricket loving country तो है ही हम. But other sports में I think we need to still come up and show our results. As sir said, you know, we are doing this movement, you know, Fit India movement. It's very important that we get more sports persons from different sports as well. It's that we have many sports persons from Haryana, from Hyderabad, from Bangalore. But all we country, I think we need more academies. We need more highest level coaches, trainers and physios. बाकी I think वो interest बना रहे. And as you see, badminton अभी इतना अच्छा चल रहा है. There's so many players who are coming up. They want to do well at the highest level, लेकिन काफी talented players को रोकना पड़ता है because they don't have proper funding, और नहीं तो काफी उनको जो चाहिए होता है top 50 level पे वो सब requirements नहीं मिल पाती है, तो उनका गेम छूट जाता है. फाइनली ऑप्शन क्या रहता है, इंजीनियर या डॉक्टर बनना. That's where I think हम smart और intelligent बहुत हैं, लेकिन थोड़े lazy हैं in terms of physical activities. You know, when I started playing, I used to always like train for like 10-11 hours, और मेरे coaches भी मुझे बोलते थे थोड़ा कम करेगी तो भी चलेगा. लेकिन आजकल के बच्चे 1 घंटे भी मतलब मुश्किल से ट्रेनिंग करते हैं, नीचे जाके कुछ खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. They always on the phone, which is little scary. खेलो, क्योंकि मैं मना नहीं कर सकती. It's become a very big part of our lives. But I think you have to spend some time in the ground as well. अपने friends के साथ कोई भी sporting activity हो, you have to do it for some time. Gym, obviously, that is after 17, 18. But before that, I think it's very important to do gymnastics, या karate. These are the sports actually जो अपने छोटे बच्चे हैं उन सबको ये सीखना चाहिए. And बाकी तो obviously चीजें आजकल बच्चे इतने smart हो गए, they have everything on their phone. They can learn a lot of things. कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे कोई sports खेलना चाहिए. But I think parents जितने important है आजकल, वो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है. बट आई फील पेरेंट्स को पेरेंट्स रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, so that I think they learn it from childhood, and then later when they grow up वो naturally हमें आ जाता है. जब मैं 8-9 साल की थी, obviously I didn't know, मुझे लगता था मैं डॉक्टर बनूंगी, पापा साइंटिस्ट हैं, कुछ पढ़ाई में कर लूंगी. बट जब तक मेरी मम्मी ने मुझे पुश नहीं किया, इतने सारे थप्पड़ नहीं मारे, और मेरे अंदर नहीं डाल दिया कि तुझे जीतना है, अच्छा करना है, तब तक obviously I didn't know what to do. But by the time I was 12-13, I was like, नहीं, मम्मी ने बोला था ओलंपिक चैंपियन बनना है, so I will try for that. And by God's grace, वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी मैं, ओलंपिक मेडल भी लेके आई. So I think it's just a belief. और मम्मी हाउसवाइफ है, तो I think it's a big lesson. Like housewife is believing in me that I should be an Olympic champion someday. And being a sports person, I can only say फिट इंडिया मूवमेंट को हम ऐसे ही कामयाब बनाते रहे. और सर जो साइकिलिंग का इवेंट आप कर रहे हैं, कल मैं उसकी भी चीफ गेस्ट हूँ. एंड आई होप मैं थोड़ी देर में भी चला सकूँ साइकिल. मैं तो सर भागूंगी लेकिन. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस. About health, about fitness, which is very important. ऐसा कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. सर ने कहा कि वी आर यंग इंडिया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई हैव बीन इनटू फिटनेस फॉर मोर देन 30 years now.
little scary is आजकल हर कोई हेल्थ फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया है और जो हमारी यंग जनरेशन है शायद वो उन्हें फॉलो कर रही है ना जानते हुए कि whether they really are professional dietitians, nutritionists, or are they really they know how to train people. Many of them youngsters मैं देखता हूँ जो गाइड करने की कोशिश करते हैं through making videos, and you can make out that they have taken steroids. You can make out that they are on fat burners. The scary part is जो हम लोग जो now we are like on that stage like हम seniors हैं, we can understand that okay, it's not important because we had our own journey. We all had our own journey, but the new generation we have to be very careful. हमें कुछ guidelines बनानी होंगी, especially on social media. Okay, who can address this? Who can guide? Who can give suggestions? Vicky sir will agree to me. He's a senior person. अब जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम शायद हमारे जैसा ना हो, एंड द रीजन इज नॉट दैट दे आर एट फॉल्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम, द इकोसिस्टम लाइक जिसमें हम सब बड़े हो रहे हैं. एंड आई एम रियली प्राउड कि आज मैं यहाँ पर हूँ इन दिस कॉन्क्लेव. बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए. एक माइंडसेट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक, यहाँ आने से पहले हम 15 मिनट मैंने मनसुख जी के साथ बिताया, एंड 15 मिनट में उन्होंने सिर्फ हेल्थ फिटनेस हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और एक जो बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही है वो है हमारा माइंडसेट. हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट बाहर से लाना होगा, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें जिम इक्विपमेंट बाहर से लाने होंगे. देयर आर कंट्रीज जहां की गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है उनके एथलीट्स के लिए, हम भी वो कर सकते हैं. और सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए वो कर सकते हैं. जिम इक्विपमेंट्स हम बना सकते हैं और बनाना चाहिए भी हमें. एक चीज और जो मुझे लगता है विच इज वेरी सीरियस थिंग इज कि हम हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए. आने का रीजन आज यही था कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील प्राउड कि हम इस तरह के कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट इस चीज को इतनी सीरियसली ले रही है, एंड आई वुड लाइक टू जस्ट से कि हमें हर साल ये करते रहना चाहिए. साइकिलिंग हम प्रमोट कर रहे हैं, एथलीट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं. बहुत सारे लाइक सानिया सेट के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, या जिन्हें बिजनेस कम्युनिटी में जितने लोग हैं, आई थिंक दे शुड कम आउट, बिजनेस फैमिली शुड कम आउट टू प्रमोट, टू गाइड, टू हेल्प, टू गाइड new kids in various sports. Saying this, I would like to end like, yes, this is a young India. एक क्विट मूवमेंट हुआ था, ब्रिटिशर्स भाग गए थे, एक फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, हेल्थ को वापस ले आते हैं. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, और ये एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है. और आज क्योंकि हेल्थ कंडीशन को लेके सब अपने आप में जूझ रहे हैं, लोग दवाइयों पे लग गए हैं, तो अब सबको लगता है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है, जबकि ये पहला हिस्सा होना चाहिए. खाने से ज़्यादा ज़रूरी पहले स्पोर्ट्स होना चाहिए. अगर जो स्पोर्ट्स करता है वो दवाइयों से बहुत दूर रहता है. तो मैं ग्रेट मिल्खा सर की थोड़ी सी एक बात करके ना मैं बैठ जाऊँगा कि उन्होंने कहा कि मैं जितनी उम्र तक जिया हूँ उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई, और ना दवाई खाने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो रोज़ रनिंग करते थे. कहते थे एक दिन बहुत सर दर्द हो रहा था तो मिसेज ना उनकी कोई दवाई रख के चले गए कि ये खा लेना, उठ के रनिंग करने चले गए. तो ये स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो, और जो स्पोर्ट्स करता है वो दवाइयों से दूर रहता है और वो हर तरह की बीमारी से दूर रहता है. और आज हम स्पोर्ट्स को इसीलिए बात की जा रही है कि हम अगर देखें, हम कह रहे हैं यूथ इंडिया है, बट यूथ इंडिया फिट कितना है. अगर वो फिटनेस की हम परसेंटेज की बात करें तो मुझे लगता है उसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मंत्री साहबान और पूरी भारत देश की
जो अब एक मुहिम है कि स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हम सबको साथ जोड़ा है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर सर, एंड वट एवर लिटिल वे वी कैन हेल्प ग्रो स्पोर्ट्स इन इंडिया, विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट. और हमारे ऐसे चैंपियन जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम ऊंचा किया है, वो एक क्यों सर, चाइना ही क्यों सारे मेडल लेके जाए या ऑस्ट्रेलिया ही क्यों मेडल लेके जाए. जो कल्चर की बात करी, क्रिकेट का कल्चर बहुत है यहाँ. आप देखेंगे विराट कोहली, तेंदुलकर, बाद में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक, कोई ना कोई तो बन के आ ही जाता है. बट साइना के बाद दूसरी साइना हम अभी भी ढूंढ रहे हैं. तो वो सर इतनी बड़ी आबादी में मुझे लगता है कि हमारे पास कम से कम 100 साइना होनी चाहिए, और ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में. तो इसके बारे में और ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे शहर है, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, मैं जलंधर शहर बहुत छोटा सा शहर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सपने थे कि कुछ करना है जीवन में, कपिल देव जैसा बनना है. चाहे सुविधाएं नहीं थी, बट लेकिन वो जोश जज्बा उतना ही था जितना एक बड़े सिटी वाला होना चाहिए. और आज अगर हम उन्हीं शहरों को देखें तो वहीं से धोनी आया, वहीं से आज बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में. तो मुझे लगता है कि वो अगर वहाँ बच्चों को थोड़ा सा और हम पुश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सके, ताकि हम देखेंगे कि जो हमारी आबादी है और जो हमारे पास टैलेंट है, उसमें हमारी जो मेडल जीतने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है. बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि हम शायद उतना प्लेटफॉर्म दे नहीं पाते हैं. और बहुत सारे जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो छोड़ जाते हैं, वो परस्यू कर लेते हैं कि नहीं स्टडी करके कुछ करते हैं. तो थोड़ा सा और खेल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है. वी नीड ऑल ऑफ यू पीपल्स बैकिंग कि स्पोर्ट्स जो है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं है बच्चों के लिए. कि अनफॉर्चुनेटली आज जो स्पोर्ट्स है वो शिफ्ट हो गया बहुत सारा मोबाइल फ़ोन पे. तो हमें कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना है कि बच्चों को वो एक्चुअल ग्राउंड तक कैसे भेजना है. किसी तरीके का भी स्पोर्ट्स खेले तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और स्पोर्ट्स सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, 60 साल के लिए बंदे के लिए भी है, 70 साल के लिए, जब तक जी रहे हो स्पोर्ट्स आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जैसे आप रोज खाना खाते हो, और खाना पचाने के लिए आपको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, और लंबा जीने के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है. तो बहुत शुक्रिया, आज मैं यहाँ पे हूँ सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर, एंड I would love to be part of going further also. Thank you so much.